finally, after running all my day to study right now, and it is 9 in the night, you must be thinking that it's not that much late. Come on. But yes, it is late to start your studying. And I don't know what I did all the day. I decided to start with my maths. My hands are so dry. So if you don't know me, I am Ishar Bukhari and I am a ninth grader. And on this channel, I share all my study routines. And here I am with another study vlog. And today I will share my night routine with all of you guys. तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगेगा क्योंकि मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन समझने या सॉल्व करने नहीं है, मुझे समझ के इस कॉपी से इस रजिस्टर पे मैं सब कुछ सॉल्व करूँगी. ओके, उसके बाद फिर मुझे नीटली इस वाली कॉपी में करना भी है बिकॉज ये वाली कॉपी मैंने सबमिट करवानी है एज अ प्रूफ कि जी मैंने प्रैक्टिस की हुई है. एंड इसमें मैंने थोड़ा नीटली काम करना है बिकॉज इसके 50 मार्क्स है. दिस इज लाइक समर वेकेशन टास्क. तो यस, आई हैव डबल टास्क टू डू. लाइक मुझे इसमें भी सॉल्व करना है, फिर मुझे इसमें भी सॉल्व करना है. एक दो इसमें सॉल्व कर लूँगी, बाकी जो क्वेश्चन है ना वो मैं डायरेक्टली इस पर सॉल्व करूँगी बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं हर क्वेश्चन के 10-10 पार्ट को लेके पहले इस पे सॉल्व करूँ. फिर बिकॉज 7-8 exercises in every chapter and I have 11 chapters. So yes, let's start over because I have long way to go. एज आई हैव मैंशन बिफोर कि गर्मियों में मुझे कुछ ना कुछ ठंडा ज़रूर पीना होता है एंड सादा पानी मुझसे बिल्कुल नहीं, लाइक बिल्कुल सिंपल प्लेन वाटर आई कांट ड्रिंक दैट. तो मैं या जमी शरी बना लेती हूँ या कभी कभी नींबू पानी बना लेती हूँ. सो येस, आई हैड दिस नींबू पानी एंड आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड माई वर्क. In this summer vacation we will go on a trip, so if you want that vlogs let me know in the comment section कि फिर मैं आप लोगों के साथ ट्रिप वाले vlogs भी शेयर करूँ. So here I was actually doing maths unit number 1 matrices. If I tell you about myself, तो मुझे logarithm के मुकाबले में और बाकी सारे maths के chapters बहुत ज़्यादा easy लगते हैं. So matrices is also a very easy chapter, like not very easy but a kind of easy chapter, but it is so lengthy और lengthy काम करने में ना मुझे मौत आ रही है आजकल. And one of the main reason behind it कि मैं maths को exams के बाद पढ़ रही हूँ. Like exams कब थे और ये अभी क्या date है आज, like the gap is crazy. This is why it is so difficult for me to lock in and to study maths because maths need your all concentration और मुझसे concentrate हो ही नहीं पा रहा आजकल. So after completing my 3 exercises, I took a small break. So it was around 10:40. I had next scholar साथ में मैंने ये खाया था and I am eating this after a long time. पता नहीं मैंने कब बचपन में ये खाया था. बीच बीच में से ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई के. आफ्टर टेकिंग द स्मॉल ब्रेक मैंने फिर अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू किया बिकॉज आई वॉज लेफ्ट विथ 3 exercises in which 2 exercises were the longest in this whole chapter. So here is another story time for all of you guys, but this time it is not about a toxic friend, it is actually about a toxic teacher. This girl has a very bad experience with teachers. Don't take her lightly because she is one of the main reason I changed my school and literally she gave me my childhood trauma. So let's start with her. तो मेरा स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर होता था. So I used to go in a bus to my home from the school. So she used to sit in front of me and she used to scold me every time, like every moment. Was it a normal scolding? No, 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 no. This was more like a typical auntie's type of a scolding. And बहुत बड़ा दुपट्टा लो because it's not safe for the girls out there. Yes, I'm not against dupatta, but you are telling literally a 10-year-old kid to wear a big chadar. So yes, you better not talk about that. Again, repeat, a 10-year-old kid. और इसकी सबसे फ़नी बात मुझे ये लगती है ना कि इसकी अपनी बेटी बुली थी एंड वो अपनी बेटी को नहीं देखती थी कि ओ माय गॉड शी इज़ अ बुली, आई शुड स्टॉप हर. वन डे आउट ऑफ नोवेयर शी डिसाइड्स टू चेंज माय सीट बिकॉज शी आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद हर. मगर उसने से मेरी सीट ही चेंज की हमारे पूरे ग्रुप में से और मुझे एक इंजन के साथ फेंक दिया इतनी गर्मी में. दैट सीट वॉज सो हार्ड क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कोई स्टील की कोई चीज़ लगी हुई थी विच हर्ट अ लॉट. तो मैं वहाँ नहीं बैठ सकती. तो मैंने अपने बाबा को कहा कि ये मेरी सीट यहाँ से चेंज करवाओ, मुझे खैर वापस अपनी जगह पे ना भेजो लेकिन मुझे यहाँ नहीं बैठना. माई फादर केम टू द स्टॉप एंड ही टॉक विद द कंडक्टर कि नहीं मेरी बेटी को पीछे बिठाओ, ये इंजन के साथ उसको क्यों बिठा रही हो क्योंकि वहाँ तो कोई बैठता ही नहीं है. दिस इज नॉट अ सीट, दिस इज अ होली इंजन. ये फुल एक स्टॉप है. ओके, तो ये सामने से आई और वो मेरे बाबा से बात करने लगी. वो खुद आई, मेरे बाबा उनके पास नहीं गए बात करने के लिए बिकॉज माई फादर डोंट नो. तो पता भी नहीं कि ये मेरी कोई टीचर होगी भी कि नहीं.
एंड शी टोल्ड माय फादर कि नहीं, हम हर साल बच्चों की सीट चेंज करते हैं और आप ये इसको यहीं बैठना पड़ेगा। सो माय फादर वाज लाइक ओके, लेकिन इसको इंजन से उठाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो शी वाज लाइक ओके, तुम फर्स्ट सीट पे बैठ जाना। इसके दो रिएक्शंस थे। जैसे मैं बस में गई और मैं फर्स्ट सीट पे बैठी जहाँ इसने मुझे मेरे पापा को कहा था कि ओके मैं इसको यहाँ बिठाऊंगी, एंड शी स्टार्टेड येलिंग एट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द बस, और इट was embarrassing as hell. Oh my god, I can't forget that moment to this day. She threw me again on the engine. उसके बाद ये फिर गई प्रिंसिपल के पास एंड शी टोल्ड द प्रिंसिपल कि इसके बाबा आए मेरे पास और उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ऑल मेन। लाइक ब्रो, यू आर सच अ लायर। मोर कॉन्टेक्स्ट, हमारी प्रिंसिपल कभी हमारे ब्लॉग में आती नहीं थी एंड द कंक्लूजन वाज दैट कि मुझे मेरी प्रिंसिपल से बहुत खराब किस्म की डांट पड़ी थी। So this was the story time for this video. If you want more story time like this, please let me know in the comment section. And it was 12:30 or 1 a.m. in the night. And my work was finally finished. तो मैं डायरेक्ट चली गई सोने के लिए. And yes, that was it for today's vlog. If you like today's vlog and if you like, please like, share and subscribe. And yes, don't forget to leave a beautiful comment because it really motivates me to make such vlogs. Bye bye.